अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Um, I hope so you are fine and in the best rate of Iman. I'm also fine, Alhamdulillah. So today there's a new topic which I will introduce you to a little bit later on. First of all, Khala, I wanna ask you, did you complete the notes? नो मैं नोट्स बनाऊंगी। Okay. मैंने बनाया ना, मैं टाइप करूंगी आपको। Did you make written notes? मैंने रजिस्टर में लिखे हुए हैं। Okay, so you can send me the screenshot as well as if you wanna do typing, so you can as you wish. So, okay, I don't know anybody will join or not, so let me start. So, our next topic is life. So, can you tell me what is life? Okay, let me tell you. Well, life is a quality that distinguishes a living organism from a dead organism or a non-living thing. Well, in simple way, life you can say we can use for those type of things that are existing. I mean, not particles or not planets. It's not used for these type of things. These are things, okay? These are not organisms. What are organisms? Well, there are two type of organisms: non-living things and living organism and dead organism. Well, living organism are those things which can walk, talk, or do anything, but we cannot include them, living organisms, in planets or stars or skies. No. We can only include humans, animals, creatures, species, any type of animal in a living organism. Non-living thing is that thing which doesn't live, which doesn't, which is only a thing, like plants and not plants, sorry, planets and stars and galaxies. These are non-living things. They don't live. Okay? They are not organisms. And the dead organisms are those organisms which are, which are dead. For example, an animal dies, so we can say that is that is a dead organism. So, well, I hope so you understood. In life, there are different type of things we will study, such as growth, adaptation, and habitat, organization, and different other things. So these are, a little bit later, these things will come. Well, basically, we will first start live from the topic how Earth was made. How Earth was made. So, well, Earth was, made thousands of years ago, and scientists have also taken out different type of things from it, such as life started, like, when the planets and when the whole universe started to form into existence after the Big Bang. And right now we just crossed Big Bang.
So, well, might think what happened after Big Bang. So let me tell you. Well, what happened directly after Big Bang is that when Big Bang exploded, so the expansion of the universe by itself started. Okay? So this is how the universe's expansion start. And after that, what happens is different type of things started going on, such as things are made, planets are made by particles, molecules. All of the planets are made with different scenarios, such as built by thin gas as well as molecules, particles. Okay, so we will learn also this part, which is very important. If we will learn this part, so we will by ourselves understand how Earth was created. After that, we will see and try to solve this, that how did life, water, oxygen, these type of sorts of things come on Earth? How did life form on Earth? Okay, and then we will, talk about the atmospheres, weathers, climates at that time, and the scenario of the space around the Earth, the whole planet system, Sun, Moon, and Jupiter, Mars, Saturn, what happened to them. Little bit discussion would be done on this, and after that, we will talk about how did deserts and forests form, how did humans, jinn, and these type of creatures come in being, and scientific facts, figures, and different other scenarios regarding them we will also find from the Quran. Yes, Wala, do you want to say something? No. Okay, so can you tell me what do you think about life? What is life? Okay, I don't know if you know about it, but let me tell you about my thinking. Well, in my thinking, life is, we live life. Organisms live life. Life is crucial for us. Without life, we cannot exist. And now you, फैलान yeah, उर्दू में भी समझा दे। अच्छा, देखें, मेरे जो अगर आप मेरे बारे में पूछे ना, जो मैं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो लाइफ है ना, वो ये है कि हम जैसे रहते हैं, हम रहते हैं ना, हमारी लाइफ है, ऑर्गेनिजम्स हैं हम, हमारी लाइफ है, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ होती है। और अब कोई भी बंदा जिसको ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पता कि हम किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो मुझसे सबसे पहले ये पूछेगा कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या इसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। तो इसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, हम लोग कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। और देखें, ऑर्गेनिज्म है ना, लाइफ कौन रहता है, लाइफ रहता है ना कोई ऑर्गेनिज्म, जीता है कोई लाइफ, तो वो सिर्फ वही जीता है लाइफ ऑर्गेनिज्म जो कि हिल सकता है, जो कि वॉक कर सकता है,
or that type of creatures existed, started existing. You know why? Because of the atmosphere, because of the temperature. लेकिन सिर्फ टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर की वजह से ही नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम और निज़ाम के तहत भी ये सब कुछ हुआ था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आलम अरवाह और फिर ट्रीटी फ्रॉम अल्लाह की हम लोग देख सकते हैं कि पहले तो जिन से पहले हिन बिन थे, फिर उसके बाद जिन थे। उनसे पहले भी मतलब हिन बिन और जिन से पहले भी डायनासोर्स थे। डायनासोर्स के बाद हिन बिन और जिन थे। फिर उसके बाद ह्यूमंस थे। तो ह्यूमंस आने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वगैरह उनसे अल्लाह ताला ने बात की थी, तो उन्होंने मतलब सारे ह्यूमंस ने ओथ ली थी अल्लाह ताला से कि हम जाके काम करेंगे, हम जाके सही करेंगे, अर्थ को ब्लड शेड से बचाएंगे, सारी चीजें। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, ये सारी चीजें हुई। और उसको समझ आ रहा है आपको? तो अभी तो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो ये सॉल्व करना है कि बिग बैंग के बाद एक्सपेंशन हो गई है अभी, लेकिन अब यूनिवर्स कैसे बनती है, कैसे फॉर्म में आती है, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, ये सारी चीजें। वैसे फिलहाल अभी इसमें मेरी वर्किंग चल रही है, लेकिन अभी हम लोग लाइफ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। एक एथियस्ट होता है ना, वो ये सवाल बहुत ज्यादा करता है, हाला, कि आप ये बताएं कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई। लेकिन ये सारी चीजें ना वो साइंस के तहत खुद भी समझाते हैं। उसने खुद भी साइंस के तहत पढ़ा होता है, ना कि कुरान के तहत। लेकिन हमें कुरान से लेकर हर चीज बतानी होती है उसको, कि कैसे ये चीज हुई तो कैसे वो चीज हुई, कैसे एटम्स वगैरह फॉर्म हुए। और इससे मुतालिक बहुत सारी आयात भी मैंने पहले देखी थी, अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन पहले मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी इनके ऊपर। तो मुझे बहुत सारी आयात मिली थी जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र फरमाया था। इवन सूरज के बारे में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है, मिलता है हमें आयात के ऊपर, जिन पे मैं अभी अपनी रिसर्च सुबह से मैंने स्टार्ट की है। और यही सारी चीज़ें हैं। आपका माइंड क्लियर हुआ लाइफ से मुतालिक? क्योंकि अगर आपका माइंड क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपके लिए बहुत इजी है हर चीज़ को समझना। क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। मतलब बाद में जब भी हम लोग और चीज़ें करेंगे, तो उसमें फिर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और अलग अलग सवालात आएंगे। जैसा कि जब हम लोग यूनिवर्स और इन सब से हट के हम लोग जो है ना जिन वगैरह को देखेंगे, तो फिर ये सवाल सवाल भी आएगा कि क्या जिन, हिन और बिन ये भी ऑर्गेनिजम्स थी? वेल, डायनासोर्स तो ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन इनका फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा जो कि हमें रिसर्च करनी होगी। और मैं आपको सारी साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए सबको समझाऊंगा। और ये आपको बात याद रखनी है इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में, कि हमें सारी मदद अल्लाह ताला से, यानी मतलब जो है ना कुरान पाक से लेनी है। जो भी हमें नहीं समझ आता वो फिर आप मुझसे पूछिएगा। आपको सेंटेंसेस निकालने हैं कुरान पाक में से। आप अगर आपकी मम्मा भी निकाल रही है ना, तो आपको उनको देखना है उनका तरीका क्या है निकालने का। फिर उसके बाद आपको वही चीज़ें करनी है, नोट डाउन करना है उनको। फिर अगर आपको उनकी तफसीर नहीं समझ आ रही, तो वो बस आप मुझे दे दें नोट्स वगैरह, जो भी सेंटेंसेस आपने ढूंढे हैं। फिर उन पे हम लोग मिल के कर सकते हैं डीप डाइव, तफसीर वगैरह। ये हमारा तरीका है। वैसे आपको लाइफ के बारे में समझ आ गया है? जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज दिस वर्दा? कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? वर्दा।
Okay, I don't know who is joining. Maybe from the English or Arabic classes. Somebody is joining, but it's fine. So, Khala, yes, can you tell me about life? What did I tell you about life? I will try to give you videos regarding this as well, easy videos from which you can understand betterly. And I am also trying to design the worksheets. Yes, can you explain me about life now a little bit? As I explained you about the organisms, about different type of organisms, living organisms, non-living things, living things, dead organisms. Okay, so you didn't understand. Well, अगर इजी वे में समझाया जाए तो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, हम उनको डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? इजी है बहुत। नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो चीज़ नहीं होती, रहती नहीं है, असली में उसके अंदर ज़िंदगी नहीं पाई जाती, असली में उसके अंदर रूह नहीं होती कोई कि वो कोई बात कर सके या कोई और चीज़। नॉन लिविंग थिंग इसको कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं अर्थ, I know about प्लैनेट, स्टार्स। I तो know about लिविंग non-living things थिंग्स as क्या होती हैं? well. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो चल फिर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, तो बात कर सकती हैं, उनके अंदर रूह होती है और उनके अंदर एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यही होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यही होती हैं जो रहती हैं, जिनके अंदर जिंदगी होती है। किसी भी एनिमल के अंदर जिंदगी होगी, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो चीज नहीं होती, रहती नहीं है। डेड ऑर्गेनिजम्स कह लें, जो चीज मर जाए, जो एनिमल मर जाए। सही है। तो ये हमारी सारी चीजें हैं। मैं आपको उस पे टास्क देता हूँ, फिर वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, साथ में ग्रुप में कर दूंगा कि आपको जो है ना इस पे रिसर्च करनी है जरा सी लाइफ के बारे में। फिर जब तक मैं अपनी रिसर्च आपको करके दूंगा यूनिवर्स के ऊपर, कि यूनिवर्स के अंदर कैसे हर चीज एक्सपैंड होती है, मतलब वही मतलब चीजें कैसे बनती हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ कैसे बनी। सही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम फिर रैप अप करते हैं अपना सेशन। मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, तो मैं चलता हूँ। डियर Allah Hafiz. ब्रदर्स, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।